Very warm welcome to all the students of class 9. My name is Ujjwal and I'll be taking your mathematics chapter number 3, and the running chapter name is factorization, and the exercise we are doing is third C. Yesterday we have already gone through up to question number 10, and a few questions I have given in homework. So today I will be starting the things from question number 17. It is a little bit tricky question, that is why I am picking this question. Question number 17 is saying that factorize what we are supposed to factorize 6 minus x minus x square. So we need to factorize this particular trinomial, quadratic trinomial. See, first thing in this question is it is not arranged properly. We know that quadratic polynomial is standing for ax square plus bx plus c. उसके हिसाब से एक्स स्क्वायर की टर्म सबसे पहले होनी चाहिए, तो वी आर गोइंग टू अरेंज दिस. तो एक्स स्क्वायर की टर्म हमने सबसे पहले रखी, लेकिन ध्यान दिए रहिएगा एक्स स्क्वायर इज इन नेगेटिव फॉर्म, तो राइट डाउन माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर. फिर सेकेंड नंबर पे मिडिल टर्म जो है वो एक्स की टर्म होती है. सेकेंड नंबर पे हमने एक्स की टर्म रखी, ये रहा एक्स, वन एक्स है लेकिन नेगेटिव में है, तो राइट डाउन माइनस एक्स एंड द कांस्टेंट टर्म एट द लास्ट प्लेस. So 6 is the constant term over here. It is in positive form. Write it down. Plus 6. So this is the proper way to arrange the given quadratic polynomial according to the standard formulation. Now we are supposed to go for the middle term splitting. Middle term में हम कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे -1x है. -1x के दो ऐसे पार्ट करने हैं कि उन दोनों पार्ट को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें -1 मिल जाए, और उन्हीं दोनों पार्ट को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 6 इंटू -1 -6 मिल जाए. ये देखिए, इस -1 के यहाँ पे 1 है तो दो पार्ट कर देते हैं 2 और 3, क्योंकि 2 3 करेंगे तो 6 मिलेगा, और 3 - 2 करेंगे तो 1 भी मिलेगा. लेकिन हमें चीज़ें अपोजिट फॉर्म में चाहिए. हमारे पास यहाँ पे -1 चाहिए और मल्टीप्लिकेशन करें तो 6 इंटू -1 -6 मिलना चाहिए. उसके लिए हम क्या करते हैं कि माइनस x² जैसा था वैसा लिख दिया, माइनस लगाए लगा दिया, 1 चाहिए यहाँ पे तो 3 - 2 कर दिया. 3 - 2 किया तो हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा, और ये माइनस लगा हुआ तो -1 हो गया. साथ में x है, पुट द x ओवर हियर प्लस 6. नाउ ओपन द ब्रैकेट, -x² माइनस प्लस माइनस 3 इंटू x 3x, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू x 2x एंड प्लस 6. नाउ पेयरिंग, दिस इज द फर्स्ट पेयर and this is the second pair. See here, in the first pair both the terms are having minus as common, so take out the minus as common first thing, and this is having 2x and this is having 1x, so take out one time x as common. So minus has been gone to the common, so 1x is left. 2x थे, एक चला गया कॉमन में तो 1x बचा हुआ है. Here we were having minus, but ये माइनस कॉमन में चला गया तो we are left with plus. 3 इंटू x था, x कॉमन में चला गया तो सिर्फ 3. ब्रैकेट क्लोज. नाउ इन दिस टर्म दिस इज 2 एंड दिस इज 2 इंटू 3, सो टेक आउट प्लस 2x कॉमन, तो x प्लस 3 इज लेफ्ट विद अस. नाउ सी द एंटायर एक्सप्रेशन, यू विल फाइंड दैट x plus 3 is here also and x plus 3 is present here also. So we are going to take x plus 3 as common. What is left in the second bracket? We are having minus x over here and plus 2. I am going to rearrange the things. In the first bracket x plus 3
इन द सेकेंड ब्रैकेट 2 प्लस में है, पहले लिख दे रहे हैं, ये रहा, और x माइनस में है, तो दिस इज द फाइनल आंसर फॉर अस. वी हैव फैक्टराइज्ड द गिवन quadratic polynomial 6 minus x square. See, we are having one more question based on the same theme. Question number 19, which is saying that factorize 40 plus 3x minus x square. The same thing we are supposed to do over here also. First of all, we have to arrange our quadratic polynomial according to the standard formulation. सबसे पहले स्क्वायर की टर्म आती है x स्क्वायर and that is with negative sign, तो write down minus x square. Then x की टर्म सेकेंड नंबर पे, तो plus 3x है, plus 3x रख दिया, and we are having plus 40 as a constant term. देखिए -1 है और 40 है, तो -1 into 40 करेंगे तो आएगा -40. अब हमारे पास मिडिल टर्म में +3 है. इस 3 के दो ऐसे पार्ट करने हैं जिनको आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर हमें प्लस का 3 मिल जाए, और उन्हीं दोनों पार्ट्स को मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 40 मिल जाए. सो वी कैन से दैट 8 और 5, 8 -5 करेंगे तो +3 मिलेगा. क्या किया? 8 -5 तो +3 मिला, और 8 into -5 -40. 8 5 is 40 with -7. So we can say that it is x square plus 3 can be written as 8 minus 5, x plus 40. So this will become x square with minus sign plus into plus 8 into x 8x plus into minus 5 into x 5x and plus 40. Done. Pairs बना दिए, first pair and the second pair. See, in the first pair we are having minus as common. We are having one minus here and we are having two minus here. So one time minus I am going to take as common. We are having 2 times x, we are having 1 times x. So I am taking 1 time x as common. What is left inside the bracket? 2 times, माइनस तो चला गया कॉमन में, तो जो भी बचेगा वो पॉजिटिव बचेगा. 2 बार x थे, एक बाहर चला गया तो एक बार बच गया. ये प्लस का साइन, यानी 2 बार माइनस था, एक बार माइनस चला गया बाहर, एक बार माइनस बच गया. 8 into x था, x चला गया कॉमन में तो 8 बच गया. Similarly, for the second bracket we are having minus sign 1 time and minus sign for 2 times. प्लस है ना, तो minus sign for 2 times. So first thing we are taking minus as common. We are having 5 over here and we are having 8 into 5 over here. तो यानी 5 भी कॉमन है, तो टेक आउट 5 also. What is left? माइनस तो कॉमन में चला गया, जो भी बचेगा वो पॉजिटिव में. 5 into x था, 5 has gone into the common as a common, तो x is left. 2 times minus 1 time as common, तो 1 time left. 5 into 8, 5 as common, तो 8 is left. See the entire expression. We are having x minus 8 as common, and in the second bracket minus x minus 5. हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें से माइनस को कॉमन ही निकाल लें. माइनस कॉमन निकाल लिया, अगर माइनस कॉमन निकाला तो ये x बचेगा सिर्फ पॉजिटिव फॉर्म में, ये माइनस कॉमन में चला गया तो प्लस में बचेगा 5, और दूसरे ब्रैकेट में x minus 8. See, this is also your answer and this is also your answer. If you are writing this one, then also it is correct, and if you are writing this one, then also your answer is absolutely correct. So these are the 2 questions based on the same theme. First we have to rearrange our quadratic polynomial, then we have to go for the factorization. Now we are moving little more further. Come on to question number 22. Yes, come on to question number 22.
It is saying factorize. Factorize what? It is x square minus 2 root 2x minus 30. C +1 है यहाँ पे इसका कोफिशिएंट और यहाँ पे -30, तो -30 इंटू +1 यानी कि -30, और यहाँ पे कौन है 2 रूट 2 विद माइनस साइन। हमें इस 2 रूट 2 के दो ऐसे पार्ट्स कर देने हैं जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें 2 रूट 2 वापस मिल जाए, और उन्हीं दोनों पार्ट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें -30 मिल जाए। क्या करना चाहिए? हम अपने 30 को पकड़ते हैं और इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 30 2 से डिवाइड किया 15, 3 से डिवाइड किया 5 से डिवाइड किया 1 टाइम। दैट मीन्स वी कैन से दैट is equals to 2 into 3 into 5, या फिर हमको रूट का नंबर चाहिए तो ये 2 बैठा हुआ है, हमें रूट 2 चाहिए, तो 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 भी तो लिख सकते हैं भाई, रूट 2 इंटू रूट 2 रूट 4, और रूट 4 की वैल्यू कितनी 2, तो इट इज डन, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इंटू 3 इंटू 5, सो वी कैन क्लब दीज टू 3 रूट 2 एंड दीज टू आर क्लब 5 रूट 3 रूट 2 मल्टीप्लाई 5 रूट 2 करेंगे तो वी विल गेट 30, और 3 रूट 2 में से अगर 5 रूट 2 माइनस होएगा तो माइनस का 2 रूट 2 बचेगा। 3 माइनस 5 करेंगे -2 विल बी लेफ्ट, तो एवरीथिंग इज डन ओवर हियर। लेट अस गो फॉर द चेंज। इट इज x स्क्वायर माइनस, इट इज 5 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 x minus 30, open the bracket, x square minus plus minus 5 root 2 into x, 5 root 2 x, minus into minus plus 3 root 2 into x, 3 root 2 x and minus 30. Pairing कर लिया, first pair and the second pair. In this first pair we are having x as common, so take out x as common. What is left over here? 2x थे, एक चला गया कॉमन में, the 1x is left over here, माइनस लगा हुआ है, put the minus sign, 5 root 2x है, x चला गया कॉमन में, we are left with 5 root 2. Now here it is x over here and we don't have x here, so we cannot take x as common. What are the other things can be taken as common? So here I am having 3 root 2 and this is 30. 30 means 3 root 2 into 5 root 2. 30 का मतलब 3 root 2 into 5 root 2, यानी इस 30 में ये दोनों वैल्यू आ रही है, और इसको अगर हम कॉमन निकाल ले तो ये बच जाएगा यहाँ पे, यही 3 root 2 ही तो कॉमन चाहिए था हमें, हमने 3 root 2 को कॉमन निकाल लिया। Positive sign, 3 root 2 as common. So what is left over here? Here I am having x left with me with minus sign. 30 था यहाँ पे, 3 root 2 कॉमन चला गया, तो 30 में से 3 root 2 अगर कॉमन चला गया तो बचा क्या 5 root 2. Now see the complete expression. We are having x minus 5 root 2, x minus 5 root 2 as common. So let us take it out. X minus 5 root 2 as common. What is left in the other bracket? X plus 3 root 2. So these are the two factors for the given factorization question. See, all the students of class 9th, please pay your attention. You need to practice these questions more and more. Last year in the 8th class also we have done the middle term splitting. We were having almost 2 exercises, और मुझे जहाँ तक याद है we were having around 30 to 35 questions related to middle term splitting. तो हम लोगों ने 30-35 क्वेश्चंस लास्ट ईयर किए हुए हैं। एग्जाम्पल्स अगर जोड़ ले तो वो नंबर और बढ़ता है। प्लस
पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2A से शुरू हो करके अभी तक हम लोग 2A 2B 2C करने के बाद 3A 3B और अब 3C में हैं। वी आर डूइंग हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ज़रूरत सिर्फ इस चीज़ की है कि जो चीज़ आपको सर बता रहे हैं, समझा रहे हैं, यू हैव टू फॉलो दोज इंस्ट्रक्शंस एंड ट्राई टू डू बाय योरसेल्फ। खुद से चीज़ों को करने की कोशिश करिए, और खुद से करने में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है देन रेफर टू वीडियो, चेक द वीडियो अगेन कि सर ने कैसे किया था, और चेक द पीडीएफ्स गिवन टू यू कि उसमें सर ने कैसे सोल्यूशन दिया हुआ है। और फिर भी अगर दिक्कत आती है देन प्लीज़ ड्रॉप मी अ मैसेज विद द पिक्चर ऑफ द क्वेश्चन, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू आउट। लेकिन तब जब आप खुद से प्रयास करेंगे, यू हैव टू डू ऑल योर वर्क, चाहे वो बोर्ड वर्क हो, वाइट बोर्ड वर्क, चाहे वो आपको पीडीएफ मिल रही हो, चाहे आपको होमवर्क मिल रहा हो, सारा का सारा काम आपको अपने स्कूल कॉपीज़ में ही करना है। और प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। डेली 3-4 क्वेश्चन इसमें के, इसके पहले वाले एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन और उसके पहले वाले एक्सरसाइज के 3-4 क्वेश्चन, कुल मिला के 10 से 12 क्वेश्चन मैथ्स के डेली करिए। ज़्यादा समय नहीं लेगा, ये आपका जो है आधे घंटे 45 मिनट्स में 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। और जैसे जैसे आपकी एफिशिएंसी आती जाएगी ये टाइम ड्यूरेशन कम होता चला जाएगा। लेकिन कब होगा ऐसा? जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे। सो प्रैक्टिस मोर एंड मोर। लेट अस गो अहेड। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 27 विद मी। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ आपको और बता दूं, तो वी आर हैविंग 2 क्वेश्चंस सिमिलर, like question number 15 and question number 26 are same. Question number 15 is saying x square minus 32x minus 105, and same thing there we are having in question number 26. It is also saying that x square minus 32x minus 105. तो हमें दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट कर लेना है। एक ही क्वेश्चन 2 बार दिया गया है 15 और 26 नंबर में। इजी है, कोई टफ चीज नहीं है, मिडिल टर्म की स्प्लिटिंग ही है, सिंपल। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27। वी आर हैविंग factorize, what we are supposed to factorize? 9x square plus 18x plus 8। अभी तक देखिए हम लोग जो करते चले आ रहे थे, एक्स स्क्वायर का स्लॉट वहां पे सिर्फ 1 चल रहा था, ये देखिए, और इसके पहले के भी क्वेश्चन देखेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट अभी तक क्या आ रहा था? 1 आ रहा था। तभी भी हमने आपको यही बताया था कि 1 इंटू -30 इक्वल्स टू -30, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है। सेम थिंग वी आर सपोज टू डू ओवर हियर। 9 प्लस में 8 प्लस में, यानी 72 आ गया प्लस में, प्लस का 9 और प्लस का 8 दोनों को मल्टीप्लाई किया 72 आ गया। अब हमारे पास मिडिल टर्म में 18 बैठा हुआ है। 18 के 2 पार्ट करने हैं, दोनों पार्ट को इस तरह से अरेंज करना है कि उन्हें ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो वापस से 18 मिल जाए, और उन्हीं दोनों पार्ट्स को अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 9 8 जा 72 मिल जाए। उसके लिए हम अपने 72 का प्राइम फैक्टराइजेशन करने जा रहे हैं। चेक कर देखिए, सी द प्रोसीजर, जस्ट activate your antennas and check what sir is doing and how he is doing. We are having 72 over here. 2 से डिवाइड किया तो 36 आ गया। अब देखिए, 2 पार्ट 2 और 36 हो सकते हैं, इन दोनों पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, लेकिन इन दोनों पार्ट को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 18 नहीं आएगा। आगे चलते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। फिर 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया। अब ये टोटल कितना हो गया? 2 2 सा 4, और ये कितना? 18, तो 18 इंटू 4 करेंगे 72, लेकिन 18 और 4 से हमें 18 नहीं मिल सकता। 18 प्लस माइनस 4 करेंगे तो भी हमें 18 नहीं मिलेगा। और आगे चलते हैं, 2 से डिवाइड किया
9 टाइम्स। अब ये हो गया 2 to the 4 to the 8, 8 into 9 72 हो जाएगा, और 8 plus 9 18 नहीं मिलेगा, माइनस करने पे भी 18, ये 8 है और ये 9 है, 8 और 9 से हमको 18 नहीं मिल पाए। हम लोग और आगे चलते हैं। 3 क्या मिला? 3, 2 to the 4 to the 8, 3 the 24, ये वैल्यू पूरी कितनी? 24, 24 इंटू 3 करेंगे 72 मिल जाएगा, लेकिन 24 में प्लस माइनस 3 करिए आपको 18 नहीं मिलेगा। और आगे चल लेते हैं। 3, 1, ये तो पूरी वैल्यू 72 होगी और यहाँ पे 1 आ गया। अभी तक हमको हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में 18 नहीं मिल पा रहा है। अब हम इसको ऐसे अरेंज कर ले रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। चलिए, जो चीज़ हम करके देख चुके हैं उनको अब दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। हम लोग 2 करके देख चुके हैं, 4 करके देख चुके हैं, ठीक है। हम लोगों ने 6 नहीं किया है अभी भाई, 2 और 36 करके देख लिया, 4 और 18 करके देख लिया। हम लोगों ने 2 और 4 के बाद 6 नहीं किया। 6 कहाँ से मिल रहा है? ये रहा 6, दिस इज 6, 2 3 जा 6 इंटू बचा क्या? 2 2 जा 4, 3 जा 12। वेरी गुड, वी हैव गॉट 12 इंटू 6 करेंगे 72, और 12 प्लस 6 करेंगे, डन। सो देखिए, प्रोसीजर पूरा पूरा फॉलो करिए। जिस जगह पे आपका डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए उसी जगह पे रुक जाइए। मैं यहाँ पे हर स्टेप पे चेक करता जा रहा था, नहीं मिला, अगला स्टेप भी करके देख लिया, मालूम चला कि हमने 2 चेक कर लिया है, हमने 4 चेक कर लिया है, 4 के बाद 8 चेक किया था, बीच में 6 छूट गया, तो हमने क्या किया कि 6 को भी चेक कर लिया। पहले 2 और 3 को मल्टीप्लाई करके 6 बना लिया, बाकी बनी हुई चीज़ें, बची हुई चीज़ें मल्टीप्लाई होकर के 12 बन गई। 12 इंटू 6 करेंगे 72, और 12 प्लस 6 करेंगे तो 18। यानी यहाँ पे 2 पार्ट 12 और 6 हो सकते हैं। तो लेट अस ब्रेक देम नाउ। दिस इज 9x स्क्वायर प्लस 12 प्लस 6x प्लस 8। This is 9x square plus 12 into x 12x plus 6 into x 6x plus 8. Make the pair of 2 first and second. यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 12 है, तो 9 का मतलब 3 into 3 और 12 का मतलब 3 into 4, यानी 3 कॉमन है। Take the 3 as common। x स्क्वायर यानी 2 बार x है, यहाँ पे 1 बार x है, तो 1 बार x ले लीजिए। 9 में से 3 कॉमन चला गया तो सिर्फ 3 बचा। x स्क्वायर में से x कॉमन चला गया तो 1 बार x बच गया, प्लस ये 12 में से 3 कॉमन चला गया तो 3 4 जा 12, 4 बच गया, 1 बार x था वो कॉमन में चला गया, ब्रैकेट कर दिए क्लोज। दिस इज 6 एंड दिस इज 8, दोनों में एक नंबर कॉमन है, वो है 2। ये है 2 इंटू 3, ये है 2 इंटू 4, तो यानी 2 कॉमन है तो प्लस 2 कॉमन लिया आपने। x तो कॉमन हो ही नहीं सकता, तो 2 इंटू 3 था, 2 चला गया कॉमन में तो 3 बच गया, और ये वाला x भी बचा हुआ है, प्लस दिस इज 2 इंटू 4, 2 चला गया कॉमन में तो 4 बचा हुआ है। नाउ सी द एक्सप्रेशन अगेन, वी आर हैविंग 3x प्लस 4, 3x प्लस 4 दोनों जगह पे है, तो वी आर टेकिंग दिस 3x प्लस 4 एज कॉमन, 3x प्लस 4 एज कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट विद द अदर ब्रैकेट 3x एंड प्लस 2। So it was little bit different type of question। यहाँ पे हमारे पास कोफिशिएंट x स्क्वायर का भी एक डिफरेंट नंबर दे रखा था, अभी तक हम लोग सिर्फ 1 को हैंडल कर रहे थे। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। उम्मीद है कि आप लोग सारा का सारा काम अपनी कॉपीज में कर रहे हैं, और अभी तक नहीं किया तो अब करिए डेली 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस। आपके पास पॉलिनोमियल है, आपके पास फैक्टराइजेशन है, आपके पास नंबर सिस्टम है, 3 क्वेश्चन पर डे करेंगे, 10 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन हो जाएंगे। प्रैक्टिस बनी रहेगी तो ही एग्जामिनेशन के लायक हो पाएंगे, अदरवाइज अगर दिमाग से निकल गया
तो फिर बड़ी मुश्किल होने वाली है। उसके लिए आपको इनके कांटेक्ट में डेली रहना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें हैं यहाँ पे, फॉर्मूले वगैरह लग रहे हैं और एक खास तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है। ये देख रहे हैं ना कि एक खास तरह का कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा है, तो ये आपके दिमाग में प्रिंट हो जाए। उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप इनके रेगुलर टच में बने रहिए। डेली 2-3 क्वेश्चन हर सेट के उठाइए। आपके पास 3 सेट है, फैक्टराइजेशन है, पॉलिनोमियल है और नंबर सिस्टम। अगर 3-3 क्वेश्चन भी आप डेली कर रहे हैं तो आपके 9 से 10 क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन हो जाएंगे। और उनको अपने आप से करिए, वीडियो देखिए, PDF सॉल्यूशंस देखिए और उनसे थोड़ी हेल्प लीजिए, जानिए समझिए कि कैसे किया। उसके बाद क्वेश्चंस को अपने आप करने की कोशिश करिए, देन ओनली you can become perfect in these topics. So best of luck to all of you. See you tomorrow at the same time. Till then, very best of luck to all of you. Have a nice time ahead.